Good morning. Jai Shri Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankua heartily welcomes you all to this online education. I am Jyoti Bhanushali and today we are going to learn about Standard 7th SST subject History, chapter number 2, Kings, New Kings and Kingdoms. Here it is clearly mentioned about the new kings and kingdoms. There were so many dynasties and so many kingdoms, so many kings are there. So let's see about the emergence of new dynasties, how they were emerge. So students, जैसे कि फर्स्ट ऑफ पहले के जो टाइम में जैसे ही जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार जिसको हम बोलते हैं, different so many kinds of landlords are there and they are going to chiefs the different part of the country or the region, and they have to obey the kings. And now what will happen that the king will support them and call them Samans. Yes, they call them Samans. And what the Samans have to do? The Samans have to obey the kings, follow their rules and bring gifts for them. Yes, to be present in the court, to support king by giving them different kinds of supports like military, armies and etc. मतलब कि क्या कि पहले के जो ज़मींदार थे, जैसे ही जो एक टाइम आया जबकि जो किंग्स थे, तो उन्होंने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स थे, मीन के जो ज़मींदार थे, उनके थ्रू उन्होंने ज़मींदार जो थे उन्होंने जो रीजन जो है, जो कंट्री है, उसके डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया. नाउ व्हाट दे विल डू, कि वो लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट किंग्स हैं, ओके, तो वो किंग्स के सामंत बनेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभालेंगे, टैक्सेस, रेवेन्यूज़ वो सारा कलेक्ट करेंगे और किंग को देंगे. किंग को डिफरेंट गिफ्ट्स वो लोग देंगे. एंड हाउ दे become a powerful. Now, as they become more and more powerful, they had established their own region, their own empire, and they overthrew their overlord, means their king. हाँ, जैसे ही वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना एक खुद का रीजन बनाएंगे, अपना खुद का एक किंगडम बनाएंगे और जो किंग है उसकी ताबेदारी से वो लोग बाहर निकलेंगे. ओके, दिस इज हाउ द न्यू डायनेस्टीज बिकम, न्यू किंगडम्स become in that region. Now, अभी कभी कभी क्या होता है कि ये जो किंग्स हैं, न्यू जो किंग्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी वो अपने लिए बहुत ही हैवी से वर्ड्स रखते हैं, जैसे कि राजाधिराज. यस, राजाधिराज, महाराजा अधिराज,
यस, त्रिलोकारी, महाराजा, वैसे वो लोग अपने लिए डिफरेंट नेम रखते हैं. नाउ हियर इज अ एग्जाम्पल ऑफ राष्ट्रकूट, द Chalukya. Yes. Now what he had done, he just ritual, मतलब कि उसने एक हवन करवाया. It was named हिरण्यगर्भ. Now what was that कि जो कि ये हवन था, ये जो रिचुअल था, अभी ये रिचुअल जो था इसके थ्रू जो लोग पहले मर चुके हैं, who had died before, they were reborn by this ritual. Yes, और वो लोग जो कि आर्मी में थे, वो लोग, उन लोगों का रीबर्थ होगा. Now so many different families, they just give up their religion, their own religion, and back to the army. They come with the arms. मतलब कि और भी कई ऐसे रिलीजन्स थे, जो लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल्स थे, तो उन लोगों ने भी ये जो आर्मी थी, मतलब कि उन लोगों ने भी शस्त्र उठा लिए और अपने अपने किंगडम्स एस्टेब्लिश कर लिए. वैसे ही दो ब्राह्मण्स थे. यस, देयर वर टू ब्राह्मण्स, और उन दो ब्राह्मण्स ने भी अपना जो पुराना जो बिजनेस था, जिसको हम बोल सकते हैं उनका जो रिलीजन था, उनका जो काम था, उसको छोड़ के उन्होंने रीजन्स जो थे, एम्पायर्स जो थे, वो बिल्डअप कर लिए. सो दिस इज हाउ द emergence of new dynasties, मतलब कि जो न्यू जो डायनेस्टीज थे वो कैसे emerge हुए. ओके, न्यू किंग्स, न्यू किंगडम्स कैसे establish हुए. Is that clear? Yes. Now move on to our next point. Administration in the kingdom. Okay, now students, here we have a example. Yes, in every month, every year, we pay some taxes. Yes, we pay some taxes to the government, right? Yes, like water taxes, road taxes, then land taxes. Yes, so many taxes are there. In fact, if you buy a chocolate or a very tiny thing, you will have to pay a tax on it. Yes, it is included in that, in it MRP, marketing retail price. Okay, so as we means nowadays, as we pay government the tax, different kind of taxes, means अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो बाय रोड, तो अगर आपको पता हो तो बीच में एक टोल टैक्स आता है, राइट? तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? यस, वहाँ पे हमें टैक्स देना होता है, पैसे देने होते हैं. फॉर व्हाट? फॉर यूजिंग दैट रोड. ओके, यस. जैसे कि आप अपनी मम्मी से या पापा से पूछना कि आप जो पानी यूज़ करते हो, आप रहते हो हाउस में, ओके, तो वो हाउस के पानी के आप लोग ईयरली उसका जो टैक्स है वो पे करते हो. अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो,
For example, as I buy this ink bottle, so I have to pay a tax for it. Okay? Yes, हम छोटी से छोटी चीज़ जो भी खरीदते हैं उससे लेके गोल्ड मतलब या फिर प्लेटिनम जो भी बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं तो उस पर भी हमें टैक्सेस पे करने होते हैं. यस, हाँ, वो टैक्स क्या होता है कि उसकी जो MRPs होती हैं उससे वो इंक्लूड होता है, उसी में वो जुड़ा हुआ होता है. नाउ स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मैं ये टैक्सेस और ये सारी बातें क्यों करने लगे, राइट? यस, बिकॉज इट इज़ अ टॉपिक. It is a topic related to our this chapter. Yes. So students, now tell me that why the government has to collect all these taxes and all these revenues from the people of the country. Why? Yes, very good. It is because of administration, right? Yes, students. जैसे कि गवर्नमेंट जो है, as we know that कि गवर्नमेंट जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल it is provided as army protection, right? There are so many government hospitals, government houses, government schools are there. Okay? Yes. Then roads, yes, well, lake. So these are the there are so many gardens. So these are the property of government and the whole country. Yes, मतलब कि बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, स्मारक जिनको हम बोलते हैं, राइट? लाइक ताजमहल, लाल किला. यस, तो ये जो भी सारे हमारे स्मारक हैं या फिर जो ऐतिहासिक स्थल हम जिनको बोलते हैं, ये सारे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका ध्यान कौन रखता है, इनकी देखभाल कौन करता है? यस, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट. तो अभी इन सब का जो ठीक से इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को जो पैसे चाहिए वो कहाँ से आएंगे? ऑफ कोर्स फ्रॉम ऑल दिस टैक्सेस that we pay to the government, right? Yes, very good. Yes, so हमें the people of the India हमें ये सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ये सारे टैक्सेस लेती है हमसे. ओके, and this is not for only started from the from nowadays. It is from the ancient time, from the time of that rulers. Yes, of course. जैसे कि हम ये पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. सो पुराने ज़माने में ये जो राजाज थे, ओके, तो इन लोगों को जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता था, उनकी जो प्रजा थी, उनके एम्पायर के, किंगडम के जो लोग थे, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो मिलती थी वो प्रोवाइड जो करते थे. तो वो कैसे करते थे? थ्रू दिस टैक्सेस. ओके, वो लोग ऐसे डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस उनसे लेते और in return they will give them facilities. Okay students, so here we completed our
these two topics, the emergence of new dynasties and administration in the kingdom. Now students, if you have any query or something in your mind to regard it to these topics, comment in the comment box, like, share and subscribe the channel and the video also, and join Microsoft Teams meeting to your doubt solving. Thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.